بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف۔ اے پیغمبر، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگو، وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا سب کچھ دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی دین پر جمے رہو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت
सा है۔ अल्लाह वो है जिसने हक पर मुश्तमिल ये किताब और इंसाफ की तराजू उतारी है, और तुम्हें क्या पता शायद कि क़यामत की घड़ी करीब ही हो। जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते वो उसके आने की जल्दी मचाते हैं, और जो लोग ईमान लाए हैं वो उससे सहमे रहते हैं और जानते हैं कि वो बरहक है। अरे जो लोग क़यामत के बारे में बहसें कर रहे हैं वो गुमराही में बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो जिसको चाहता है रिस्क देता है, और वही है जो कुव्वत का भी मालिक है, इक़्तिदार का भी मालिक। जो शख्स आखिरत की खेती चाहता हो हम उसकी खेती में और इजाफा करेंगे, और जो शख्स सिर्फ दुनिया की खेती चाहता हो हम उसे उसी में से दे देंगे, और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। क्या इन काफिरों के कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने इनके लिए ऐसा दीन तय कर दिया है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है? और अगर अल्लाह की तरफ से फैसला कुन बात तयशुदा न होती तो इनका मामला चुका दिया गया होता। और यकीन रखो कि इन जालिमों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। उस वक्त तुम इन जालिमों को देखोगे कि इन्होंने जो कमाई की है उसके वबाल से सहमे हुए होंगे, और वो इन पर पड़ कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नतों की क्यारियों में होंगे। उन्हें अपने परवरदिगार के पास वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे। यही बड़ा फजल है। यही वो चीज है जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारी की मोहब्बत के, और जो शख्स कोई भलाई करेगा हम उसकी खातिर उस भलाई में मजीद खूबी का इजाफा कर देंगे। यकीन जानो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि इस शख्स ने ये कलाम खुद खड़कर झूठ मूठ अल्लाह के जिम्मे लगा दिया है? हालांकि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह तो बातिल को मिटाता है और हक को अपने कलिमात के जरिए साबित करता है। यकीनन वो सीनों में छुपी हुई बातों तक को जानता है। और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है, और जो कुछ तुम करते हो उसका पूरा इल्म रखता है। और जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो उनकी दुआ सुनता है और उन्हें अपने फजल से और ज्यादा देता है, और काफिरों के लिए सख्त अज़ाब है। और अगर अल्लाह अपने तमाम बंदों के लिए रिस्क को खुले तौर पर फैला देता तो वो जमीन में सरकशी करने लगते, मगर वो एक खास अंदाजे से जितना चाहता है रिस्क उतारता है। यकीनन वो अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर उन पर नजर रखने वाला है। और वही है जो लोगों के नाउम्मीद होने के बाद बारिश बरसाता और अपनी रहमत फैला देता है, और वही है जो सबका काबिल तारीफ रखवाला है। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन की पैदाइश, और वो जानदार जो उसने इन दोनों में फैला रखे हैं, और वो जब चाहे इनको जमा करने पर पूरी कुदरत रखता है। और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों किए हुए कामों की वजह से पहुंचती है, और बहुत से कामों से तो वो दरगुजर ही करता है। और तुम्हारी मजाल नहीं है कि जमीन में अल्लाह को आजिज कर सको, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई रखवाला है न मददगार। और उसकी निशानियों में से हैं समंदर में ये पहाड़ों जैसे जहाज। अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे जिससे ये समंदर की पुष्ट पर खड़े के खड़े रह जाएं। यकीनन इसमें हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियां हैं जो सब्र का भी खूगर हो, शुक्र का भी। या अगर अल्लाह चाहे तो इन जहाजों को लोगों के बाज आमाल की वजह से तबाही कर दे और बहुत सौ से दरगुजर कर जाए। और जो लोग हमारी आयतों में झगड़े डालते हैं उन्हें पता चल जाए कि उनके लिए कोई बचाव की जगह नहीं है।
तुम्हें जो कोई चीज दी गई है वो दुनियावी जिंदगी की पूंजी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उन लोगों के लिए कहीं बेहतर और पायदार है जो ईमान लाए हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो दरगुजर से काम लेते हैं, और जिन्होंने अपने परवरदिगार की बात मानी है और नमाज कायम की है, और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं, और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से वो नेकी के कामों में खर्च करते हैं। जब उन पर कोई ज्यादती होती है तो वो अपना दिफा करते हैं, और किसी बुराई का बदला उसी जैसी बुराई है। फिर भी जो कोई मुआफ कर दे और इस्लाह से काम ले तो उसका सवाब अल्लाह ने जिम्मे लिया है। यकीनन वो जालिमों को पसंद नहीं करता। और जो शख्स अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बराबर का बदला ले तो ऐसे लोगों पर कोई इल्जाम नहीं है। इल्जाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म करते और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। और ये हकीकत है कि जो कोई सब्र से काम ले और दरगुजर कर जाए तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद कोई नहीं है जो उसका मददगार बने। और जब जालिमों को अजाब नजर आ जाएगा तो तुम उन्हें ये कहता हुआ देखोगे कि क्या वापस जाने का भी कोई रास्ता है। और तुम उन्हें देखोगे कि दोज़ख के सामने उन्हें इस तरह पेश किया जाएगा कि वो जिल्लत के मारे झुके हुए कनखियों से देख रहे होंगे। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो कह रहे होंगे कि वाकई असल खसारे में वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। याद रखो कि जालिम लोग ऐसे अजाब में होंगे जो हमेशा कायम रहेगा, और उनको ऐसे कोई मददगार मैसर नहीं आएंगे जो अल्लाह को छोड़कर उनकी कोई मदद करे। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं होता। लोगों, अपने परवरदिगार की बात उस दिन के आने से पहले पहले मान लो जिसे अल्लाह की तरफ से टाला नहीं जाएगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी और ना तुम्हारे लिए पूछगछ का कोई मौका होगा। ऐ पैगंबर, ये लोग अगर फिर भी मुंह मोड़े तो हमने तुम्हें इन पर निगरां बनाकर नहीं भेजा है। तुम पर बात पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इंसान का हाल ये है कि जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखा देते हैं तो वो उस पर इतरा जाता है। और अगर खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से ऐसे लोगों को कोई मुसीबत पेश आ जाती है तो वो ही इंसान पक्का नाशुक्रा बन जाता है। सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है। वो जो चाहता है पैदा करता है। वो जिसको चाहता है लड़कियां देता है और जिसको चाहता है लड़के देता है, या फिर उनको मिला जुला कर लड़के भी देता है और लड़कियां भी, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो इल्म का भी मालिक है, कुदरत का भी मालिक। और किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे सिवाय इसके कि वो वही के जरिए हो, या किसी पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम लाने वाला फरिश्ता भेज दे और वो उसके हुक्म से जो वो चाहे वही का पैगाम पहुंचा दे। यकीनन वो बहुत ऊंची शान वाला बड़ी हिकमत का मालिक है। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास अपने हुक्म से एक रूह बतौर वही नाजिल की है। तुम्हें इससे पहले न ये मालूम था कि किताब क्या होती है और न ये कि ईमान क्या है, लेकिन हमने इस कुरान को एक नूर बनाया है जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम लोगों को वो सीधा रास्ता दिखा रहे हो जो अल्लाह का रास्ता है। वो अल्लाह जिसकी मिल्कियत में वो सब कुछ है जो आसमानों में है और वो सब कुछ जो जमीन में है। याद रखो कि सारे मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे।